My dear students, Assalamu alaikum. Before going on to my topic, I would like to say something to you, my dear students, that don't venture out. Stay indoors and stay safe because this pandemic is spreading so fast and it has engulfed the entire world. So, our today's topic is chapter number 3 in English, class 5th, Birbal the Wise. First of all, I would like to do model reading and I would urge you to practice it in your homes. Birbal the Wise. Birbal is famous for his wit in Indian history. He was appointed a poet and singer in the court of Akbar, Emperor Akbar, but his wit soon earned him a place of courtier among the Navratans of Akbar. Read this story and find out how intelligence and presence of mind helps Birbal solve a tricky situation. Wit is a pivotal part of one's personality. It helps us in building keen perception and mental equity. This capacity of inventive thought and quick understanding helps one handle awkward and tricky situations in an intelligent way. Once Surya Singh, the prince of Manipur, came to Delhi on business. He was traveling alone. It was a secret mission, so he did not bring a single servant with him. On the way, he saw a weak and tired-looking man sitting on the roadside. He stopped his horse and asked him, "Which way are you going?" "I have to go to Delhi, sir. I must be there before nightfall. But I will never reach the city, for I am tired." Surya Singh felt sorry for him. He got off his horse and asked the man to get on to it. "You ride my horse and I will walk. I am also going to Delhi, but I do not know the road very well. You can show me the way." The man gladly got on the prince's horse. Surya Singh walked beside him. When they arrived at the city gates, Surya Singh asked the man to get down. The man looked surprised. "Why should I get off the horse?" he asked. So it was a model reading. Now I request all the students to do the same in your homes. Now I would tell you the meanings of this passage which I have read over here in Urdu, or we can use our own mother tongue, Pahadi. Birbal is famous for his wit in Indian history. बीरबल जो है वो जाना जाता है अपनी होशियारी के लिए, अपनी अक्लमंदी के लिए हिंदुस्तानी तारीख में. He was appointed a poet and singer in the court of Emperor Akbar. Emperor Akbar की कोर्ट में उसको अपॉइंट किया गया, मुकर्रर किया गया, पोइट भी और एज ए पोइट और एज ए सिंगर उसकी कोर्ट में इसको अपॉइंट किया गया. But his wit soon earned him a place of courtier among the Navratans of Akbar. जो उसकी विट थी, जो उसकी होशियारी भी कह सकते हैं हम, जो उसका अक्ल जो था, उसने उसको एक और मुकाम अकबर की कोर्ट में दिलवाया. वो था जो उसके 9 जिम्स थे. अकबर की कोर्ट में जो 9 जिम्स थे, जो 9 नवरत्न थे अकबर की कोर्ट में, उसमें इसका नाम भी इंक्लूड हो गया. Read the story and find out how intelligence and presence of mind helps Birbal solve a tricky situation. इस स्टोरी को पढ़ने और हम मालूम करेंगे कि उसकी जो इंटेलिजेंस थी, उसकी जो जहानत थी और उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जो उसके जहन की मौजूदगी थी, मतलब वो किस तरह किसी भी ट्रिकी सिचुएशन को, डिफिकल्ट सिचुएशन को, मुश्किल सिचुएशन को या एम्बैरेसिंग सिचुएशन को किस तरह वो हल किया करता था. वो उसको मदद करती थी उसकी इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड. Wit is a pivotal part of one's personality.
विट जो होती है वो सेंट्रल पार्ट माना जाता है किसी की शख्सियत का। इट हेल्प्स अस इन बिल्डिंग कीन परसेप्शन एंड मेंटल इक्विटी। ये हमें मदद करता है किसमें, कि इंसान का जो परसेप्शन है, जो समझ है, जो आधारक है एक इंसान का, या उसकी जो मेंटल इक्विटी है कि वो कितनी तेजी से किसी चीज को, कितनी शिद्दत के साथ किसी चीज को हल कर सकता है, वो उसमें मदद करता है उसको। दिस कैपेसिटी ऑफ इन्वेंटिव थॉट, ये जो उसकी कैपेसिटी होती है कि नई तरह की थॉट को क्रिएट करना, एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग, बड़ी शार्पनेस के साथ मतलब समझ लेना किसी चीज को, हेल्प्स वन हैंडल ऑकवर्ड एंड ट्रिकी सिचुएशंस। और किस तरह वो ऑकवर्ड सिचुएशंस को और जो ट्रिकी सिचुएशंस होती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, उनको किस अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट वे में, इंटेलिजेंट मैनर में वो उनको हल करता है। यहाँ पे अब स्टोरी का जो हमारे पास है, स्टोरी बीरबल की है। बीरबल कितना चालाक होता है, कितनी उसकी विट होती है, कितना वो इंटेलिजेंट होता है, किस तरह वो किसी सिचुएशन को, ट्रिकी सिचुएशन को, डिफिकल्ट सिचुएशन को वो किस तरह हल करता है, इसी के बारे में है। एक बार एक प्रिंस था जिसका नाम था सूर्या सिंह। सूर्या सिंह दिल्ली जा रहा था बिजनेस के सिलसिले में। वंस सूर्या सिंह द प्रिंस ऑफ मणिपुर, जो मणिपुर का प्रिंस था, सूर्या सिंह उसका नाम था, वो दिल्ली जा रहा था बिजनेस के सिलसिले में। ही वॉज ट्रेवलिंग अलोन, वो अकेला जा रहा था। इट वॉज ए सीक्रेट मिशन, क्योंकि वो उसका कोई अपना एक खुफिया मिशन था, उस मिशन पे जा रहा था। सो ही डिड नॉट ब्रिंग ए सिंगल सर्वेंट विद हिम, तो उसने कोई भी अपने साथ, वो अपना जो नौकर था, खादिम था, उसको अपने साथ नहीं लिया। ऑन द वे, रास्ते में क्या हुआ, ही saw a weak and tired looking man sitting on the roadside। रास्ते में क्या हुआ, उसने देखा कि एक कमजोर सा और थका मानद इंसान बैठा हुआ है रोड के किनारे पर। He stopped his horse, उसने अपना घोड़ा जो था उसको रोका, and asked him, और उसको कहा, उससे पूछा उस बंदे से, which way are you going, किस तरफ आप जा रहे हो, किस रास्ते पे आप जा रहे हो, कहां जा रहे हो आप। I have to go to Delhi sir, उस बंदे ने कहा, जो रोड साइड पे बैठा हुआ था, उसने कहा कि I have to go to Delhi, मुझे दिल्ली जाना है। I must be there before nightfall, इससे पहले कि रात हो मुझे वहां पहुंचना चाहिए। But I will never reach the city for I am tired। यहां पे वो कहता है कि मैं सिटी में, शहर में नहीं पहुंचूंगा क्योंकि मैं थक गया हूं। फार यहां पे जो लगा है, इसके माने यहां पे बिकॉज के आते हैं। फार, इसके माने यहां पे बिकॉज के आते हैं। सूर्य सिंह फेल्ट सॉरी फॉर हिम। सूर्य सिंह जो था उसको उस पर तरस आया। फेल्ट सॉरी, फील सॉरी से निकला फेल्ट सॉरी, यहां पे फील पिटी, तरस खाना। सूर्य सिंह ने उस पर तरस खाया। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरा सूर्य सिंह, एंड आस्क्ड द मैन टू गेट ऑन टू इट, और उस बंदे से कहा कि आप इस घोड़े पे चढ़िए। यू राइड माई हॉर्स, आप मेरा घोड़ा चलाइए, एंड आई विल वॉक, और मैं आपके साथ चलूंगा। आई एम ऑल्सो गोइंग टू दिल्ली, मैं भी दिल्ली जा रहा हूं, बट आई डू नॉट नो द रोड वेरी वेल, लेकिन मुझे रास्ते का पता नहीं है, सड़क का पता नहीं है, अच्छी तरह से नहीं जानता हूं मैं। यू कैन शो मी द वे, आप मुझे रास्ता दिखा सकते हो। द मैन ग्लैडली गॉट ऑन द प्रिंसेस हॉर्स, वो जो बंदा था, वो जो आदमी था, वो बड़ी खुशी खुशी से प्रिंसेस के घोड़े पे चढ़ गया। सूर्य सिंह वॉक बिसाइड हिम, सूर्या सिंह उसके साथ चलता रहा। When they arrived at the city gates, जब वो सिटी के गेट्स में पहुंचे, सूर्य सिंह asked the man to get down, सूर्य सिंह ने उस आदमी को कहा कि आप उतरिए। The man looked surprised, वो बंदा हैरान हो गया। Why should I get the horse? Get off the horse, मैं इस घोड़े से क्यों उतरूं? He asked, उसने पूछा। यहां पे मैंने कोई
वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। वर्ड्स है मेरे पास, मीनिंग्स इनके हम वीक जैसे हमारे पास, तो वीक का जो माने आएंगे वो कमजोर के आएंगे। अगरचे इंग्लिश में जो है, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ता है, लेकिन अब बायलिंगुअल तरीका है हमारा, तो हम इसको बायलिंगुअल तरीके से अपनी मदर टंग में भी पढ़ा सकते हैं या कोई और लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परसेप्शन होता है समझ, ट्रिकी सिचुएशन होती है हमारे पास डिफिकल्ट सिचुएशन। या मुश्किल सूरत। फिर है तुम्हारे पास पिविटल। पिविटल यहां पे सेंट्रल कहते हैं इसको, मरकजी, जो सेंटर वाला हो। फिर हमारे पास सर्वेंट, नौकर, खादम कह सकते हैं हम। फिर हमारे पास सीक्रेट